हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे से हैं और सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास अगेन विद वन ब्यूटीफुल एंड मोटिवेशनल थॉट, which is beautiful thing about learning is that no one can take it away from you. This is one of the most beautiful and motivational thought. आपने जो पढ़ा है, जो आपके पास है, उसको आपसे कोई छीन नहीं सकता. This is the beauty of education, beauty of learning. Fine. So let's start without wasting our time. The class, first of all, part 2 of binomial theorem, class 11th maths. In first part, we have already discussed what is binomial theorem, what is use, and what is binomial expansion and all. And now in today's class, we are going to study two terms. Rather, two subtopics are left in this chapter, which is how to find out general term and how to find out the middle term. Fine. So first of all, let's do some recap of the previous video. What we did in the binomial theorem. Actually, था क्या? What was the? ज़्यादा time नहीं लेंगे, सिर्फ recap करेंगे. We studied what was expansion of a plus b whole power n. That was what? It was nc0 a to the power n b0 plus the second term was nc1 a to the power n minus 1 b1, and likewise it was still ncn a to the power 0 and b to the power n. This we have studied yesterday also. Clear? And what else we studied about here? We studied here what are the total number of terms. What are total terms? Total number of terms. Rather, total number of terms in given expansion. Without calculation कैसे हम निकालते हैं given expression में कितनी उसमें total number of terms होंगी. Suppose your power is what? That depends on the power. जो भी आपके पास power, suppose power is 10, your index number is 10, this is given to be 10. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी उसमें? दैट विल बी 10 प्लस 1, एक बढ़ जाती है, दैट विल बी 11. सो योर आंसर विल बी 11 हियर. फाइन. एंड द नेक्स्ट वी स्टडीड अबाउट व्हाट? वी स्टडीड टू इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आल्सो. वी स्टडीड अबाउट द कोएफिशिएंट, व्हाट इज बायनोमियल कोएफिशिएंट, दैट आल्सो वी स्टडीड. दैट वाज एनसीआर जो हमारे पास होता है, एनसीके जो भी हम नाम लेते हैं नीचे, दैट वाज बायनोमियल कोएफिशिएंट. एंड वी स्टडीड टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज which is useful your ND exam also and your JEE exam also. उसमें भी डायरेक्ट 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है. Then what is the answer of NC0 plus NC1 plus NC2 up to how much plus NCN? That was equals to 2 to the power n. And if we are taking all these terms with the alternate plus minus sign, then what will be the answer? What will be the answer here? That will be equals to 0. So these are the most important formulas in binomial theorem जो 1 मार्कर में आपके पास पूछे जाते हैं. So now let's start with today's topic, how to find out the general term. How to find out general term of the given expansion. If I do some recap also of your class like 10 and 11, you have studied AP. क्या होता है AP? कि we have such kind of term A1, A2, A3. हमारे पास कुछ इस तरीके से हम एक सीरीज एक सीक्वेंस लिखते हैं, और जो लास्ट टर्म हमारा होता है, दिस वी टर्म एज द जनरल टर्म. इसी को हम जनरल टर्म बोलते हैं. जनरल टर्म इसी को बोलते हैं जो लास्ट होता है हमारा. AN से डिनोट करते हैं वहां पे भी, लाइक AN से भी करते हैं, TN से भी करते हैं. Likewise we have general term in binomial theorem, the same formula. It will be TR plus 1 this time. R plus why R plus 1? Because आपने अभी देखा था कि इफ यू हैव इंडेक्स नंबर एज r, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में एक इंक्रीज होके आती है, तो दैट विल बी r प्लस 1. सो व्हाट विल बी जनरल टर्म हियर? दैट विल बी इक्वल्स टू NCR, द लास्ट वन, NCR a to the power n minus r b to the power r. जो हमारे पास लास्ट होता है वही हमारा क्या होता है? वही हमारा जनरल टर्म होता है. मतलब अगर आप देखो, मैंने जो आपको पास एक समीशन लिख के फॉर्मूला बताया था, सिर्फ समीशन को हटा दीजिए, जो आपके पास बच जाता है वो आपका क्या होता है? जनरल टर्म होता है. दिस इज वेरी बेसिक फॉर्मूला. कुछ अलग से सेपरेटली पढ़ने की जरूरत नहीं कि व्हाट इज अ जनरल टर्म. क्लियर? सो दिस इज योर जनरल टर्म, NCR a to the power n minus r BR. दिस विल बी योर जनरल टर्म. बाकी इसमें और कुछ नहीं पढ़ना. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग. मैंने लिखा भी यहाँ पे, जनरल टर्म ऑफ द बायनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन इज व्हाट? TR plus 1 NCR. X है, यहाँ पे मैंने X और Y लिया, A और B लिया, doesn't make any difference. The first term n minus r and the second is b to the power, the second term to the power r. That means what we are choosing from that. So if you are getting the video, if you are getting the things, please like the video and subscribe the channel. And now move on to the next thing. Now how to find out the middle term.
इसके क्वेश्चंस ना अभी एक साथ देखेंगे कि जनरल टर्म का और मिडिल टर्म का फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन होता कैसे है, पहले समझ लेते हैं बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल टॉपिक्स. हाउ टू फाइंड आउट द मिडिल टर्म. मिडिल टर्म की अगर बात करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास जैसे a plus b होल पावर n, वी हैव दिस थिंग. अब दिस n कैन बी इवन एंड दिस n कैन बी ओड. तो विल टॉक अबाउट बोथ द थिंग्स कि जो हमारा इवन है n है वो इवन भी हो सकता है, वो हमारा क्या हो सकता है, ओड भी हो सकता है. तो m कैन बी इवन नंबर, इट कैन बी ओड नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है. अब इवन की मैं बात करती हूँ सपोज, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. अगर n मेरा इवन नंबर है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, सपोज दिस इज n, तो टोटल कितनी हो जाएंगी यहाँ पे n+1, मतलब जो टोटल बनेगी वो ओड बन जाएगा. आर यू गेटिंग. तो अगर मेरे पास, मैं एग्जांपल से बात करती हूँ, सपोज आई हैव n इज इक्वल टू 8, माई इंडेक्स पावर इज 8, इंडेक्स नंबर इज 8. सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बन जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स will be how much, total number of terms will be how many, it will be 8 plus 1, that will be 9. अब एक बात बताइए, if you have 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 terms मेरे पास है, तो how will you find out the middle one, 1 2 1 2 1 2 1 2, तो बीच में जो बच जाता है that will be my middle term. अब ये तो होगी कि बहुत छोटा नंबर अगर आपको दिया है and then we are finding using this method. ठीक है, तो ये तो होगा छोटे बच्चों वाला खेल कि हमने ये निकाल लिया. तो मिडिल टर्म कौन सा होगा इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ विल बी द मिडिल टर्म हियर. लेकिन अगर पावर मेरी थोड़ी सी बड़ी पावर है तो हाउ विल यू फाइंड आउट, हाउ विल यू फाइंड दैट. सो फॉर्मूला फॉर दिस इज, इफ यू हैव इवन नंबर ऑफ व्हाट इंडेक्स पावर इज 1, टोटल नंबर भी n+1, सो मिडिल टर्म विल बी हाउ, व्हाट, योर मिडिल टर्म विल बी इक्वल्स टू योर n/2 plus 1, n/2 plus 1. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट मिडिल टर्म when you have the index number or the power as your even number. यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, हमने भी फिफ्थ निकाला था ना, it was 8, so 8 divided by 2 plus 1 equals to 4 plus 1, that was our answer, fifth term. So this is the formula to find out the middle term, n/2 plus 1. बात करते हैं odd number की. odd number की, odd number का मतलब है अगर आपके पास n हमारा odd number है, सो टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स यहाँ पे होंगी, जो टोटल टर्म्स यहाँ पे आएंगी, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी n+1 हो जाएगा नेक्स्ट, एंड दिस नंबर विल बिकम दिस टाइम इवन नंबर. गॉट इट. चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल से. फॉर एग्जाम्पल योर सपोज n इज इक्वल टू व्हाट, योर n इज व्हाट, व्हाट बताइए. लेट्स सपोज दिस इज इक्वल टू 9, लेट्स सपोज दिस इज इक्वल टू 9. So total number of terms how many you will have, total terms you will have 10. ये बन जाएगा. अब फिर से हम थोड़ा बच्चों वाला खेल खेलते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दिस यू हैव स्टार्टेड. जैसे आपने मीडियन निकालना सीखा था कि एक वहां पे तो अरेंजिंग हम अरेंज करते हैं, सेंडिंग डिसेंडिंग. हियर वी आर नॉट अरेंजिंग, मीडियन मतलब मिडिल वाला जो निकालते हैं. सो यहाँ पे 1 1 1 2 2 3 3 4 4. अभी दोनों को अगर इनको भी काट दूंगी तो क्या बन जाएगा, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं. तो whenever you have even number as sorry odd number as the index number or the power, तो आपके पास जो मिडिल टर्म आती हैं वो आपके पास दो आएंगी. यहाँ पे कौन कौन सी आई आपके पास मिडिल टर्म्स, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स. तो फिर से वही कि बच्चों की तरह तो हम कर नहीं सकते अगर पावर ज्यादा. सो व्हाट विल बी द जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग middle terms when you have the index or power as odd number, that will be n+1/2. and देखिए आप चेक भी कर सकते हैं, अभी हमने कितना था हमारे पास 9, इंडेक्स वाज 9, so 9 plus 1 divided by 2, it will be 10 divided by 2 which is equals to 5. तो ये हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट नंबर हो गया. दिस वाज द फिफ्थ टर्म एंड वी हैव टेकन द सिक्स्थ आल्सो. सो सिक्स्थ के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट विल बी n plus what, 3 divided by 2. This is the general formula again. It will be 9 plus 3 divided by 2 equals to 12 divided by 2 equals to 6. So these are the two general formulas to finding your middle terms when you have even and odd. So please keep in mind this कि हमें अगर middle term निकालनी है, middle term depends on the your index power कि वो even है कि वो odd है. Let's write down here also कि हमारा जो n है it can be even. अभी सीधा लिख देते, एग्जाम्पल की जरूरत नहीं. even, it can be even, it can be odd. तो अगर even है आपके पास
तो मिडिल टर्म हाउ विल यू फाइंड आउट, सॉरी मिडिल टर्म आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी n/2 + 1, और अगर ओड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर विल बी टू मिडिल टर्म्स, n + 1/2 एंड n + 3/2. There will be two middle terms when you have the power what? The power a plus whole power n. ये पावर जो आपकी है अगर वो इवन है तो ये लगेगा और आपके पास ओड है तो ये लगेगा. Only these two things you need to study here. What is how to find out general term and how to find out the middle term. I hope it is clear with everyone. New chapter है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो everything will be clear. And this chapter is also यूजफुल, लाइक योर एनडी एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, और आपके पास जेडब्ल्यू में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एंड दे आर वेरी सिंपल ऑल्सो. अगर आप ध्यान से पढ़ के चलेंगे तो पीवाईक्यू करिए, सब कुछ एवरीथिंग विल बी सिंपल, आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हाट यू नीड टू स्टडी. चलिए अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की. So this is your first example. First of all, find coefficient of x to the power 6 and y cube in the given expansion. आपको एक्सपेंशन दी है. सबसे पहले जब भी आपको एक्सपेंशन दी है उसका आप क्या लिख लीजिए, you write down the what? The general term. First of all, इसका जनरल टर्म कैसे लिखेंगे? जनरल टर्म, what will be general term of this? It will be tr plus 1. जनरल टर्म is always denoted by tr plus 1. क्या होता है, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, that was ncr a to the power n minus r and b to the power r. This was the general term. This was the formula. मैं बार बार बोलती हूँ, please write down the formulas again and again so that you are able to recall all the formulas. You will remember all those. ठीक है, मैंने भी कुछ अलग से कुछ खा के याद नहीं किया है. You will also learn. चलिए, तो tr plus 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? This is your a here and this is your b here, और ये है आपका n. Clear everyone कि a क्या है, b क्या है और n क्या है. चलिए रखते हैं वैल्यूज. n is what? 9 here. c and r को ऐसे रखते हैं, we don't know what is r. Now a is what? a is x. यहाँ पे आ जाएगा 9 minus r, और b के प्लेस पे आ जाएगा 2y which is equals to what? r only. Clear everyone? Now simplify this. If I simplify this, 9cr, we can write this x to the power 9 minus r. Now if we open this, can we open this? y to the power r यहाँ पे लिख देते हैं, और 2 to the power r को कॉमन लेंगे तो मैं उसको थोड़ा आगे लिख देती हूँ, because that is a constant term. 2 to the power r is a constant term. Now what you need to find out here? We need to find out coefficient of x to the power 6 and y to the power 3. मतलब हमें इसका कोएफिशिएंट चाहिए. इसका क्या, अब यहाँ पे भी ना इसका कोएफिशिएंट x और y ये हो गया, बाकी इसके अलावा तो कुछ नहीं है. तो x और y के हमारे पास जो बच गया, this will be our answer. This will be the coefficient of x to the power 6 and y to the power 3. But हमने तो 3 और यहाँ पे तो 3 और नहीं है मैडम, यहाँ पे तो r है, तो आपने कैसे बोल दिया? ठीक है, मान लेते हैं 2 to the power r into 9cr. अब अगर आप देखें यहाँ पे हमें सिर्फ r की वैल्यू चाहिए. r की वैल्यू कैसे निकलेगी? अगर आप यहाँ पे देखें, ये है 9 minus r और ये है y to the power r. यहाँ पे हमें चाहिए y क्यूब. अगर आप इसको कंपेयर करेंगे इससे, तो r को कितना रखने से काम चल जाएगा? अगर मैंने r को क्या रख दिया, यहाँ पे 3 रख दिया, तो y को क्यूब देगा मुझे? ये बिल्कुल देगा. और अगर मैंने यहाँ पे r को 3 रखा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी पुट करना पड़ेगा. सो दैट विल गिव मी x to the power 9 minus 3 which is equals to x to the power 6. आप एक रखिए, सेकंड विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट इटसेल्फ. क्लियर? कोई भी रखिए आप, नॉट ओनली y, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ x ऑल्सो. x में भी आप रख सकते थे. अगर यहाँ पे x को मैं 6 रख देती, सॉरी 3 रख देती, तो भी मुझे वही देता, 6 देता. 9 minus 3 6 देता, और यहाँ पे मैंने 3 रखा था तो यहाँ पे भी रखना पड़ता. सो यू फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सी कि what you need to find out. Accordingly, give the value of one x or y, either x or y, and the second one adjust automatically. बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आपको क्या पुट करना पड़ेगा? यहाँ पे put your r is equals to 3. Then you will have the coefficient. जो भी बचता है वो आपका coefficient हो जाता है. Now put your value here, 2 to the power r की प्लेस पे 3 आ जाएगा. This will be 9c3. Are you getting my point? Now you need to clear do what now? Just you need to simplify this. 2 to the power 3 is what? 8. And 9c3 का मतलब क्या होता है? जिसको नहीं आता है, प्लीज डू इट इन द सिंपल वे. गलत करने की जरूरत नहीं है, सिंपली कैलकुलेट करिए और आंसर लाइए अपना. क्या कॉम्बिनेशन सबको लगाना आता है? दिस इज 3 and this will cancel out this, and if you calculate, this will be 8 into 3 into 4 into 7, that will be 672. Just calculate the answer.
दिस विल बी द आंसर ऑफ योर दिस क्वेश्चन, दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब सबको पता होता है कि जिसका कोएफिशिएंट पूछा है ना उस टर्म में उस चीज को छोड़ के जो भी बच गया वापस वो आपका कोएफिशिएंट होता है। क्लियर है बात? समझ में आ गया कि कैसे करना है? अभी आपको कोई भी कोएफिशिएंट पूछ ले किसी भी का तो क्या आप करोगे? सबसे पहले जनरल टर्म लिखोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे? यू फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द जनरल टर्म और अकॉर्डिंगली जिसका भी कोएफिशिएंट पूछा है वहां पे आप अपने आर की वैल्यू पुट करोगे जो भी पूछा गया है। क्लियर? ओनली 2 steps you need to do in this such type of question where you need to find out coefficient of the given variable in the given expression. Clear? Now move on to the next question number 2. Find 13th term in the expansion of this one. अब फिर से उसने एक्सपेंशन में क्या, जब जब टर्म पूछा जा रहा है ना मीन्स यू ऑलवेज नीड टू फाइंड आउट योर व्हाट जनरल टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। जब जब वो टर्म पूछे लाइक ये कोएफिशिएंट पूछे या इतना नंबर का टर्म पूछे या फिर ही इज आस्किंग फॉर द मिडिल टर्म एंड ऑल एवरीथिंग यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड योर जनरल टर्म। क्लियर है बात? चलिए अब tr+1 की बात कर लेते हैं। इसमें tr+1 क्या होगा? नाउ दिस इज माई a now and this is my b now and this is your n. So this we can write 18cr 9x to the power n minus r and this will give me minus, क्योंकि माइनस लगेगा इस बार साथ में, 3√x whole power r। बात समझ में आ रही है? So this will be my general term first of all। अब उसने पूछा है मेरे से 13th टर्म। 13th टर्म कैसे आएगी? मतलब इसके प्लेस पे मुझे अगर मैं इसको इक्वल टू 13 रखूं तो मेरे पास आ जाएगा टर्म 13th, बट should I put r equals to 13? Should I put r equals to 13? If I put r equals to 13 बच्चा, then it will give me 14th term. So remember this thing, whenever he is asking 13, 14, 15, तो जो r की वैल्यू होगी वो आपको एक कम रखनी है। बात समझ में आ रही है? तो we are not putting here r equals to 13. अगर मैंने r equals to 13 किया, so this will give me 14th term. So what we need to put here? We need to put here r is equals to 12. Are you getting my point? So ये put कर दीजिए, आप you will get your answer automatically. Let's do it quickly. 18c12. This will be 9x to the power how much? This was 18 rather. 18 minus 12 is what? 6 into minus 1 by 3 root x whole power 6. Are we done? Yes. Just do it fast. 18c12, it will be 9 to the power 6 into x to the power 6 into minus का power 6 है, even number है, वो बन जाएगा positive, नीचे आ जाएगा 3 to the power 6 and this will give me what? This will be x to the power 1 by 2 into 6. तो आप अगर देखेंगे ये कितना देगा आपको? Sorry, this was 12. This was 12. ये 12 हो जाएगा और ये this will also be 12. So this will cancel out with this one क्योंकि it will be 6. X to the power 6 will give me x to the power 6. Now what we are left with? We are left with 18c12 और अगर आप इसको भी देखें ये भी कट जाएगा। कैसे? Because this we can write as 3 to the power 3 square to the power 6 और ये देगा 12 और ये कट जाएगा आपस में। So answer will be 18c12. This will be your answer. आप इतना छोड़ना चाहते हैं इतना छोड़ दीजिए, बट MCQ पूछा है और आंसर में लिखा है पूरा एक्सपेंड करके, then you need to simplify it also. But आप पहले इसका ट्रिक समझिए कि what you need to find out. क्या आपने सबसे पहले अगर एक्सपेंशन में टर्म निकालना है then you need to take what should be the value of r to find out your term. जब आपने 13 पुट किया वहीं पे आपका आंसर गलत हो जाता है क्योंकि आप 13 पुट करते ही आपका 14th टर्म आप फाइंड आउट कर रहे हैं, बट वो तो मेरे से 13th पूछ रहा है। तो बच्चे यही गलती करते हैं कि 13th टर्म पूछा है ना, सीधा सीधा आंख बंद करेंगे, जनरल टर्म निकालेंगे और r की वैल्यू को 13 पुट कर देंगे, विच विल बी टोटली रॉन्ग। ठीक है? सो जस्ट कीप इन माइंड व्हाइल सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। थक गए? कोई बात नहीं, बस 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, फिर यू कैन टेक रेस्ट एंड देन यू कैन डू योर मिसलेनियस ऑल्सो। क्लास में होते तो थोड़ा हंसी मजाक हो जाता, अभी तो पढ़ाई करना जरूरी है क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई के बिना काम चलेगा नहीं। चलिए, फाइंड मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब फिर से हमें एक क्वेश्चन दे दिया है जिसमें कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका मिडिल टर्म। कैसे निकालेंगे मिडिल टर्म बताइए। अब अगर यहाँ पे देखें हमारा n क्या है, यहाँ पे n हमारा क्या है, n जब जो n वो आता है ना इवन नंबर, मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि एक ही टर्म निकालनी है भाई।
तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी यहाँ पे टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी, टोटल टर्म्स हो जाएंगी 10 + 1 विच इज इक्वल टू 11। और अगर मैंने अभी बताया था अगर इवन नंबर है n हमारा तो कितनी होती है n + 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, यही होती है? नहीं, ये नहीं होती, n/2 + 1 होता है। ठीक है, बड़े खुश हो रहे थे मैम, सही लिख दिया? नहीं, गलत लिख दिया भाई, ध्यान से देखो, n/2 + 1 होगा, 10/2 + 1 इज इक्वल टू 5 + 1 एंड द आंसर विल बी 6। मतलब आपका जो 6th टर्म होगा वो आपका क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। द मिडिल टर्म विल बी योर 6th टर्म। ठीक है, अब उसने ना सिर्फ ये नहीं पूछा कि कौन से नंबर की होगी, उसने फाइंड करने के लिए भी बोला कि भाई फाइंड करना है आपको मिडिल टर्म। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैंने बोला था टर्म निकालना है मतलब जनरल टर्म तो लिखना ही पड़ेगा। सो TR + 1 विल बी व्हाट, इट विल बी 10CR x/3 पावर कितना 10 - r और 9y टू द पावर r। ये हो गया जनरल टर्म। अब निकालना है 6। तो r को क्या पुट करें जल्दी से बता दो, 6 पुट करूं कि 5 पुट करूं? फटाफट बता दो, 5 पुट करूं कि 6 पुट करूं? 5 और 6, 5 और 6 कौन सा? 5 ले लो, 5 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 6 लो, 6 ले लो, कौन सा होगा? 5 का 2, 5 का 2, 6 का 2, 6 का 2। वेरी गुड। जो 6 बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, जो 5 बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 5 के 2 बिक जाएंगे आप लोगों को। चलिए बात करते हैं आगे। तो r इज इक्वल टू हम 5 पुट करेंगे, तो r को अगर मैं 5 पुट करूंगी यू विल गेट द 6th टर्म हियर, r 5 + 1 is 6। सो दिस विल गिव मी द वैल्यू 10C5 x/3, इट विल ऑल्सो बी 5 एंड 9 अलग अलग लिख लेते हैं, इट विल बी 5 एंड y ऑल्सो बी 5। क्लियर? दिस इज द योर नेक्स्ट वर्क विच आपको सॉल्व करना है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी 10C5 x to the power 5, नीचे आएगा 3 to the power 5 into दिस विल बी 3 to the power 10 लिख सकते हैं सीधा सीधा, बिकॉज ये स्क्वायर देगा और स्क्वायर ही मिला के 10 बना देगा, और ये बन गया 5। और आप इसको सॉल्व करके आप इसको थोड़ा सॉल्व करके देख लीजिए, यू विल हैव द आंसर 61236, बिकॉज ये इससे कट जाएगा और एक ऊपर देगा और यहाँ पे आपके पास x to the power 5 और y to the power 5 बचेगा एंड दिस विल बी योर एग्जैक्ट आंसर। आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखिए इसको, आपके पास ये आंसर आएगा। डोंट लीव द आंसर यहाँ पे नहीं छोड़ना, आप छोड़ेंगे तो आपका एक नंबर आप लूज करेंगे। यहाँ पे बात समझ में आया कि हाउ टू फाइंड आउट द मिडिल टर्म ऑफ द गिवन एक्सपेंशन। ठीक है, इवन नंबर आता है तो मैं बड़ी खुश होती हूँ क्योंकि एक ही निकालनी होती है, और अगर ओड नंबर आ जाता है तो दो निकालनी पड़ती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, देन दिस वीडियो विल बी ओवर। फाइंड ये ना दिस इज इस टाइप का क्वेश्चन ना बहुत बार पेपर में आता है, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अब आप बोलो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कैसे निकलेगा? टर्म तो निकाल देते हैं कि भाई 5th निकालनी है, 6th निकालनी है, या फिर किसी का कोएफिशिएंट निकालना है, मिडिल निकालनी है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है अभी देख लेते हैं क्या मतलब होता है। अब इसमें भी टर्म निकालनी है, मतलब पहला काम मैंने करना है कि मैंने अपना जनरल टर्म लिख लेना है। व्हाट विल द जनरल टर्म हियर? अब अगर आप यहाँ पे देखें ये हमारा a है और ये है हमारा b, ठीक है, और ये हमें दिया है n, तो जनरल टर्म क्या हो जाएगा? जनरल टर्म विल बी 6CR। थकना मना है मेरे बच्चों, थकना मना है। ठीक है, मैथ पढ़ते हुए कोई नहीं थकता यार, क्या तुम लोग मजाक करते रहते हो मेरे साथ। इट विल बी, आधे लोगों को तो नींद आने लगती है ना, नींद नहीं लेनी है, मैडम भी जाग रही तुम्हारे लिए। -1/3x होल पावर r। क्लियर? दिस विल बी योर व्हाट? जनरल टर्म फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ x का क्या मतलब होता है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, चलो फिर निकालेंगे इंडिपेंडेंट। 6CR कोएफिशिएंट्स जो कांस्टेंट टर्म्स है ना उनको थोड़ा अलग अलग कर लो, 3/2 को अलग कर लेते हैं, फिर x² को एक साथ अलग रख देंगे, और यहां से क्या अलग होगा? -1/3r को थोड़ा अलग कर देते हैं, और 1/x है उसको थोड़ा अलग कर देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और रीअरेंज करती हूं मैं। 6CR 3/2 6 - r -1/3 r। अब बचा क्या? x के पास x बचा है। यहां से अगर मैं x वालों को कलेक्ट करूं, एक तो ये x है, x वाला है, और एक ये x वाला है, तो इफ आई कलेक्ट x वाला इट विल बी व्हाट? 12 - 2r, इट विल बी 12 - 2r। ठीक है, और ये मुझे देगा x to the power -r। ये समझ में आता है? इसका मतलब -r ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब
ये अरेंज हो चुका है मेरा। अगर आप देखें तो ये वाला जो फर्स्ट मैंने लिखा है टर्म, इसमें कोई भी एक्स नहीं है। एक्स कहाँ कहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे है। अब उसने ये बोला था कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब होता है कि पूरे आंसर में कहीं पे भी एक्स नहीं होना चाहिए। और ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है जब ये वाली टर्म क्या बन जाए, पूरी क्या बन जाए, जीरो बन जाए। अगर बेटा इसको जीरो बना दिया तो ये पूरा जीरो नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमें चाहिए। बेसिक मीनिंग इज एक्स टू द पावर 12 माइनस 3r। ये जो टर्म है, अगर मैं इसको 1 भी बना दूं, अगर मैं इसको 1 भी बना दूं तब भी तो मेरा काम चल जाएगा ना, जीरो बनाना थोड़ी जरूरी है। 1 को आई कैन राइट एक्स टू द पावर 0। तो बेस हो गए सेम और यहां से क्या हो जाएगा, पावर विल बी इक्वल। तो आप अगर निकाल कर देखेंगे r की वैल्यू आएगी 4, ठीक है। ये तो मैंने निकाला बेटा, r निकाला है। सिर्फ इंडिपेंडेंसी नहीं हुई अभी, उसने टर्म पूछी है कि निकालो टर्म को, ठीक है। तो सिर्फ r निकला है। चलिए, इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे पूरी एक्सप्रेशन में r को क्या रख दूं, 4 रख दूं, तो ये पूरा टर्म मुझे मिला के क्या दे देगा, ये पूरा टर्म बन जाएगा 1 और मेरा आंसर आ जाएगा इंडिपेंडेंट टर्म, इंडिपेंडेंट ऑफ x। विल गेट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। इसका मतलब r को मैंने क्या कर देना है, यहाँ पे 4 रख देना है। और r को जैसे मैंने 4 रखा तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर t 5th टर्म निकलेगी। मतलब जो टर्म होगी इंडिपेंडेंट ऑफ x वो 5th होगी। चलिए, ये तो पता चल जाता है, t 5th होगी। दैट विल बी 6c5 नहीं 6c4 सॉरी 6c4 3/2 पावर 6 माइनस 4 कितना देगा, 2 देगा। इनटू में -1/3 का पावर भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एंड इफ यू सिंप्लीफाई 6c4 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस और 1/3 की पावर बन जाएगी 4। आप इसको कैंसिल आउट करिए, आपके पास ये बनेगा। एंड इफ यू सिंप्लीफाई दिस, आपके पास आंसर आएगा 5/12। सिंप्लीफाई करके देख लेना, मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे आता है, ठीक है। आपके पास ही आएगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है इंडिपेंडेंट का और बच्चे समझ नहीं पाते कि इंडिपेंडेंसी का मतलब क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जनरल टर्म निकालिए और फिर सारा ना सिर्फ एक्स वालों को एक साथ इकट्ठा करिए और ट्राई टू मेक दैट इक्वल टू 1। और 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, उसकी बेस की जो भी आपको बेस दिया उसका पावर 0 लिखिए। देन बेसिस विल बी सेम, पावर विल बी इक्वल एंड यू विल गेट योर r का वैल्यू, जहां से कि आपको पता चलेगा कि उस r के अकॉर्डिंग which term will be the independent of x. Are you getting my point? So this was the small topic of binomial theorem in which we concluded about general term and the middle term and what is independency also, independency of the x in the given expansion. तो ये small topic था and this cover all the topics of binomial theorem in class 11th first of all. CBSE बोर्ड के हिसाब से इसके अलावा इसमें आपके पास कुछ नहीं आएगा. Now you can go and do your miscellaneous also and that will be easy for you. If you have any doubt, any query, you can tell me in the comment section कि मैडम ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, वो क्वेश्चन नहीं हो रहा, हम आपके साथ करेंगे. और फिर भी कोई भी दिक्कत आती है आप बेझिझक आप मेरे से पूछ सकते हैं. एंड अगेन इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द सम फ्रेश टॉपिक एंड कुछ अच्छा सीखेंगे. ठीक है, टिल देन थैंक यू and bye.